So it's परिवेश 2.0. तो वेल फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि ये परिवेश 2.0 क्या है, और भला कि उससे पहले मैं थोड़ा अपना मेहमानों से थोड़ा परिचय करा देता हूँ. दैट इज दे आर फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर्स ऑफ exotic birds, and the brand name that is Gift of Flight, and they are Mr. Rahul and Miss Atri. So welcome Rahul and Atri on board. तो राहुल, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि what is exactly this परिवेश? वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म 2019-20 इसके बिटवीन में नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट से के पास. लाइक बिफोर इट वाज 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट. उसके बाद जो नया एक्ट अमेंडमेंट हुआ एक्सेट्रा हुआ, उसके बाद जो भी एग्जॉटिक लाइफ स्पीसीज, बार बार बोल रहे एग्जॉटिक लाइफ स्पीसीज, डोमेस्टिक कुछ भी हो, वो बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एक्सेट्रा एनीथिंग, so that falls in CITES. Okay, CITES, I'm sure everyone is aware of what CITES is, otherwise just Google CITES. So because India has signed the treaty with CITES, now so the entire organizing body of CITES is now activated in India. So according to Parivesh or the Ministry of Forest and Climate Change for India, so we have to voluntarily declare whatever stocks we have with us. हमारे पास जो है, हमको वो गवर्नमेंट को बोल देना है कि see these are the things that I have, so that there's transparency between both parties. That is the main thing. This is the main thing. Why it happened? Because usually the smuggling was in a different level. Like क्योंकि आज जो भी इतना कुछ आया है इंडिया में, वो तो 100-200 साल पुराना बात है. We all know it has came from outside. एक obviously एक मैकाओ तो उड़ के नहीं आएगा, या अरवाना तो स्विम करके नहीं आएगा मलेशिया से इंडिया. इट्स नॉट पॉसिबल. तो इट वाज ऑलवेज ऑब्वियसली इम्पोर्टेड. कोई भी चीज़ जो है हम लोगों के पास एग्जॉटिक से, वो हम लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू परिवेश 1.0. कोई भी कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र जो हो रहा है, इट शुड बी डोमेस्टिक इंडिया. ओके, इट शुड बी एन इंडियन ब्रेड स्पीसीज. You cannot bring birds or other animals from outside, okay, which is CITES protected. The Amazons that I have. अच्छा, और to be very honest, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. ठीक है. So पहले मैंने जाना, मैं छोटा-छोटा एक क्वेश्चंस कर रहा हूँ. So I think it will be easier for me to also learn, understand and learn. और आप लोग को भी एकदम पूरा क्लियर पिक्चर, एकदम दूध का दूध, पूरा पानी का पानी हो जाए. ये परिवेश में जो भी हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ रहा है, so is it only our like local Indian species? No. Like वो imported, नहीं दोनों? No. Locally imported species you're saying from other countries? No, means एक होता है local birds और local fishes. Native, no native. No native. कुछ रखना illegal है. You can't keep anything native species. You cannot have any native species in your home for any commercial purpose or pet purpose or anything. Anything you can't keep. So naturally इसको तो कोई डिक्लेयर करने का सवाल भी पैदा सवाल नहीं ही होता है. नहीं. ये एक-एक करके हम लोग क्लियर करते हैं. Absolutely. ये एक हो गया. Secondly, you mentioned कि इसमें it deals with all sort of exotic species. Yes. Right. तो ये what is the meaning of the word exotic? जो हमारे देश का नहीं है वही exotic. The origin of the bird that not is not India. from this country, not bird, but the origin of the species that is not from India is exotic. You mean to say जो भी imported हो रहा है वही exotic हो रहा है? Imported ऐसा नहीं, जो भी origin मतलब जो हम लोगों का environment में आपको नहीं दिखता है. Because technically देखिए, we understand exotic means very 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 rare, something which is very very extremely rare. No, not in that sense. This Don't country. think of it as the word. आप Exactly. exotic word सुन के सोच रहे हो बहुत कुछ हाँ, बड़ा because चीज है. मायने मतलब उसका मतलब अगर different हो Right. जाता है तो No, ये people will confuse. here exotic correlates to origin of the species. Okay. तो परिवेश में ये आता है. No native or Indian species, nothing. And now we are mentioning about our topic is परिवेश 2.0. 2.0, not 1. तो Correct. अब ये बोलिए, that means 2 जो है परिवेश 2, that is a new one. Right. तो ये परिवेश 1 से we have come to परिवेश 2. Yes. और ये कब से चालू हुआ? ये this परिवेश 2.0 is already there, has been implemented,
but this is going to be starting, like the notification has been given in March, so all the new redeclaration has to be done within August, 6 months. ये जो नया परिवेश 2.0 आया है, ये implement कर दिया है, system चालू है already, but it is being carrying forward from परिवेश 1. It's not like someone who has not done परिवेश 1 is अचानक आ जाएगा यहाँ पर. That's not possible. So that because all your stocks has already been declared, you have to redeclare the stocks. So according to the new rule, you have to redeclare. ये 1 और 2 ये दोनों में अंदर फर्क क्या है? What is new? 1 जो था वो गवर्नमेंट ने बोला था कि आप वॉलेंटरीली डिस्क्लोज कर दो, खुद के वॉलेंटरीली. हम लोग कोई आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको इम्यूनिटी भी दे देंगे ये टाइम से ये टाइम तक, जो भी टाइम था 2001 मार्च 2021 मार्च के था वहाँ पर. दैट वाज फ्री, इट हैड नथिंग टू डू विद एनी मनीटरी ट्रांजैक्शन. जो भी आप फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गया और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होता था that you have to make progeny and give transfer. मतलब आप अगर मेरे से एक बर्ड खरीदते हो या कोई भी कुछ साइटिस प्रोटेक्टेड चीज़ खरीदते हो तो मैं उसके लिए आपको मैं ट्रांसफ़र दूंगा. ये ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? आपके लिए ये प्रूफ ऑफ एक्विजिशन है कि आप कहाँ से खरीदे हो, राइट? सो दैट बिकम्स व्हाट दिस इज इन इंडिया. सो नाउ दिस इज अ लोकल ब्रीड एक्सोटिक स्पीसीज, लोकल ब्रीड एक्सोटिक स्पीसीज. इट बिकम्स अ प्रूफ. गवर्नमेंट के पास प्रूफ रह जा रहा है अभी. अफ्रीका से वो नहीं लिया है. दिस इज नॉट अ स्मगल्ड. अभी ये गवर्नमेंट ने बचा दिया है हम सबको. जो परिवेश 1 में जो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर था, तब आप कैसे लिए हो, कहाँ से लिए हो, कोई नहीं पूछेगा. अब आते हैं परिवेश 2 पे. व्हाट इज द न्यू थिंग? अभी जो ऑलरेडी आप लोग डिस्क्लोज कर दे हो कि जो भी कुछ है, अभी आपके पास जो है, जो मैच करके जो भी पेपर है, लेट्स से 10 पेयर्स जो भी है आपके पास, वो आपको गवर्नमेंट के पास फिर से रीडिक्लेयर करना पड़ेगा. रीडिक्लेयर, ठीक है, बट दिस टाइम विथ मनी. दिस इज नॉट एनी मोर फ्री. यू हैव टू पे 1000 रुपीज पर एप्लीकेशन. और ये एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा स्पीसीज भी हो सकता है, एक स्पीसीज भी हो सकता है. आपके ऊपर है आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हो. बहुत लोग चाहते हैं कि एक पेपर अलग रहे हर स्पीसीज के लिए. वो लोग ईच एप्लीकेशन में पे करेगा, और जब एक के अंदर 10 पेयर रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके. तो बट इसमें अभी कुछ स्पेसिफिकेशन आया है कि वही एक एप्लीकेशन में कितना नंबर ऑफ नो. अच्छा, तो आत्रेयन राहुल, ये सर आप लोग बोलिएगा ना कि हमारे व्यूअर्स लोग फिर ये परिवेश 2 को वो स्मूथली उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करे, या तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो. जो हम लोग परिवेश 1 में थोड़ा बहुत सुने थे कि बहुत कुछ ग्रे एरियाज था, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सबके साथ, ये गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ चैलेंजिंग वाला पार्ट्स जो कुछ थे. तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ये परिवेश 2 एकदम फुल प्रूफ मक्खन का तरह सब लोग के पास आसान चीज भी कैसा हो जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी. ये तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि आसान हो जाए, मगर ये हो नहीं रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास आइडिया ही नहीं है कि इतना एक्सोटिक हो सकता है इंडिया में. lakhs and lakhs of application has come for परिवेश 1, ठीक है, और इतना सोचा ही नहीं था. तो they have knowledge in their different field. Maybe they are very knowledgeable in botany. Okay. Someone is very good with fish. But जब काम आता है वेरिफिकेशन का, तब तो वो कुछ भी कर, सब जगह पे जाना पड़ता है ना. कभी कभी इलेक्शन पे भी जाना पड़ता है उन लोगों को. मैंने सुना है, उनसे ही सुना है. केरला में हुआ है. I know this. People are going there. They saw grey parrot. They're telling this is Indian species. Okay. फॉरेस्ट ऑफिशियल को yes, फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल के पास गूगल खोल के दिखाना पड़ा, विकिपीडिया के ऑरिजिन दिखाना पड़ा, फिर उनको समझ में आया. अगर समझ में आ गया तो ठीक है भाई, दैट इज फाइन. मगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यूजुअली नहीं होता, मैं बोल लूंगा कि नहीं होता नहीं है, मगर इश्यूज है कि उतना अवेयरनेस नहीं है. और ये सिर्फ फॉरेस्ट का बात नहीं है, ये आपका नेबरहुड का भी एक बात है. कैसे कि बहुत लोगों को मेरीन फिश में कोरल इलीगल है इंडिया में, राइट. तो अगर पकड़ लीजिए आपके पास मेरीन टैंक है, आपने कोरल नहीं रखा, मगर सब लोग जानते हैं आप मेरीन फिश करते हो, कुछ ना कुछ कोई कुछ बोलेगा कि कोई इलीगल कुछ रख रहा है. ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है. ये सोसाइटी को एडुकेट करना बहुत डिफिकल्ट है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, ये परिवेश हम लोग, वी आर द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम इंडिया हु इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज. जब यूपीआई पहले आया था इंडिया में, ठीक है,
लोग बोलेंगे क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लोग फोन तो यूज ही करना नहीं जानते। 7-8 years बैक प्रोबेबली, अभी गोलगप्पा के दुकान रास्ते के ऊपर QR कोड है। सो इट टेक्स टाइम, इट विल हैपन, बट वो जो ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत चैलेंजिंग होता है। ये जो पेपर्स वगैरह अभी हो गया है ना, इसके लिए मार्केट फॉल हो गया है। ओके, क्योंकि हाँ, ये आप जैसे मैंने बोला अवेयरनेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं है, ये इससे 3 या 4 टाइम्स नॉर्मल पब्लिक के पास अवेयरनेस नहीं है। तो ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हो, ये जो हम लोग थोड़ा बहुत ही सही सुन रहे हैं कि बर्ड्स का भी मार्केट थोड़ा सा फॉल हाँ, कर रहा है। 100%। दिस इज द रीजन बिहाइंड हाँ, बर्ड्स क्या रेप्टाइल्स पे भी हुआ सब है। कुछ में 1 लाख का चीज आज 70-60,000 में आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि चल लीजिए आप गांव में हो, ये कलकत्ता में बैठ के या कोई मेन सिटी में बैठ के बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। आपका कुछ गांव में 100 पेयर गए, कुछ नहीं, बजीज का सेटअप है, आपको ये कैसे मालूम होगा ये सब चीज? आप आते हो संडे गली स्ट्रीट बाजार में, जो बच्चा होता है आके देके चले जाते हो, ये आपका लाइवलीहुड है। ये बहुत सारा लाइवलीहुड इसके ऊपर चलता है, और ये गवर्नमेंट इन लोगों को देखा ही नहीं। जब ये लोग नहीं देखेगा, जैसे कि पकड़ लीजिए 100 पेयर जो इसके पास है, वो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा और रखेगा जो साइटिस प्रोटेक्टेड अंडर है, फिर उसके घर अगर रेड मारोगे तो वो जब परिवेश के बारे में जानते ही नहीं, उसके पास पेपर कैसे रहेगा? They don't have the education for 10th grade. How can you expect them to have the education for something law that has recently come? And it is जो प्रोसीड्योर है डिफिकल्ट इवन फॉर अस। इतना ये लिंक वो लिंक, अभी तो पेमेंट का भी आता है, वो मेरे को अभी मालूम नहीं। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे 3-4 महीने बाद, जब पेमेंट प्रोसीड्योर भी रेडी हो जाएगा। करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। Absolutely. आप लोग के सुविधा के लिए we will definitely do. People needs to be educated. Absolutely. तो ये जगह पे बोलेंगे what role can the government play कि सब लोग और थोड़ा sensitized हो, थोड़ा educated Yes, हो। very good और ये question. जगह पे आप लोग भी क्या, as a breeders, आप लोग भी क्या कर सकते हैं? बट आधार कार्ड तो सबको मालूम है, वोटर कार्ड तो सबको मालूम है, इसको सेंसिटाइज करना पड़ेगा फॉर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कैंपेन्स करके, Process? एटलीस्ट Campaigning, जी, right? सिर्फ कैंपेन सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्यों आप इतना डिफिकल्ट प्रोसेस रख रहे हो कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर सब कुछ जाकर फिलअप करो, टाइम में करो? व्हाई मेक द प्रोसेस सो डिफिकल्ट? चलो आप सोचिए कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, अगर है तो कितने लोग जानता है? इसका दुनिया में जो बोलते हैं नहीं एकदम है। विशिष्ट, एकदम स्पेशल पीपल आते हैं, लाइक आप लोग हो, सुकांतोदा है, आई थिंक मैनी डॉक्टर बैनर्जी है, डॉक्टर मिस्टर भट्टाचार्य भी है। आप लोग क्यों नहीं, मे बी यू पीपल मेक अ बॉडी और समथिंग, No, we have. have, represent a certain body, Yes, we have. We already have that. राइट द Yes. जो लगता है सुधार चाहिए, क्यों आप लोग फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं लिखते? हम कर रहे हैं। It's already done. It's A lot already of petitions are filed. बहुत लोग सपोर्ट भी किया है, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मिनिमम है। मतलब गवर्नमेंट आप 100 चिट्ठी भेजोगे तो गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक दे। प्रॉब्लम थोड़ा सा वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ हो जाता है, क्योंकि सब लोग उतना कोऑपरेटिव नहीं है, और हम लोग वही चाहते हैं कि दे बिकम कोऑपरेटिव, दे हेल्प पीपल so that they can educate and everything works smoothly. Cooperative, they help people so that they can educate and everything works smoothly. बर्ड फील्ड या ऐसा कुछ नहीं, कुछ बिजनेस में भी देयर विल बी ग्रे एरिया, सो टू मेक श्योर टू अवॉइड दैट ग्रे एरिया। कोई आपको हेल्प करे कि ना करे, खुद को हेल्प करना पड़ेगा। कैसे करे, ये वीडियो आप देखिए, सोचिए मेरा बात, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल आपके स्टेट में जो है, या मेरे से कनेक्ट कीजिए, बहुत लोग हैं, मेरा कोई बात नहीं, जो भी जानता है मोस्ट वेलकम, most welcome. You can give it in the description. No worries. Okay, 8981-470-435. Please feel free to text me on WhatsApp. We can talk. What are the suggestions you would like to give to the जो सब नए हॉबिस्ट है, जिनको शायद परिवार लेके पूरा अवेयरनेस शायद थोड़ा कम है, और maybe they're confused. Connect to So, people. You have to. The first thing you need in the hobby is networking. तो चिड़िया रखा है, आपको मालूम नहीं कौन सा साइटिज में है, तो आप गूगल करके देख लीजिए Google कि अपेंडिक्स 1 में या 2 में है, Mm-hmm. ये देख लीजिए आप। फिर परिवेश 2.0 का जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया हो, वो एक बार प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट करके इधर वीडियो में दीजिए, या कोई लिंक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। वो नोटिफिकेशन आप लोग सब पढ़िए, पूरा रूल लिखा हुआ है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, कितना अमाउंट है, कैसे जो भी है रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन, वो देख लीजिए आप। एंड विदाउट परिवेश ट्रांसफ़र डू नॉट बाई एनीथिंग,
दैट इज इलीगल, यू शुड नॉट बाई। और कोई पेपर मायने नहीं रखेगा। गिफ्ट आप बोल, कोई मेरे को पूछा था कि गिफ्ट डीड बना लो, नहीं चलेगा। वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने डायरेक्ट बोल दिया वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। गिफ्ट, कोई गिफ्ट किया है आपको गिफ्ट किया है बोल रहे हो। तो गिफ्ट डीड क्या हो जाता है, एक्विजिशन प्रूफ यूज कर सकते हो। तो ये बात है कि गिफ्ट डीड तो एक्विजिशन कर दिया, तो उसके पास आया कैसे? So it has to be Parivesh. It has to either be Parish or it has to be a no objection certificate from the wildlife department. Okay? और वो तो होगा नहीं, तो वो होगा, छोड़ी दो, वो there is no point There's of no that. point. So Parivesh. And to finishing of my video, to sum of the video, कुछ भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग परिवेश 2, कुछ भी समझ में नहीं आया, any questions? Absolutely. I know it's a very Mr. difficult. Rahul, and the number is 8981470435. यार ये educational video है। ये thanks to Oni's Aqua for making this video. no, Even but I thank Rahul and Atri yeah, उन लोग का बगैर ये वीडियो सिंपली पॉसिबल नहीं। So thank you all of you, thank you. bye bye.